वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। चिल्ड्रन, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था द टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, दैट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और हमने उसको डिफरेंशिएट किया था कि उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, राइट? हाउ कैन वी एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, that is magnetic materials. So we can explain it on the atom basis, that is atomic model of magnetism. The atomic model of magnetism is based on the fact that the magnetic moment of an atom is due to number one, the orbital motion of electron, and number two, the spin of electron. बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट जो आता है यानी कि मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है हर एक एटम में, उसकी वजह है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन न्यूक्लियर के अराउंड, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन का स्पिन करना अपनी एक्सिस के अराउंड, राइट? एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक मोमेंट इज ड्यू टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? सो नाउ वी विल एक्सप्लेन फर्स्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, diamagnetics. We'll discuss about the diamagnetics. Children, the atoms of diamagnetic material have generally even number of electrons. यानी कि 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, यानी कि even number of electrons होते हैं ज्यादातर, mostly. And each two electron form a pair, right? And the pair is such that, अगर मैं एक दिखाना चाहूं आपको, तो pair is such that one is moving clockwise, then and another is moving anti-clockwise, this way, and therefore the net magnetic moment of an atom will be zero. क्योंकि जितना मैग्नेटिक मोमेंट इसकी वजह से होगा एक पेयर में, उतना ही इसकी वजह से होगा, तो जीरो हो जाएगा। तो जितने पेयर बने हुए हैं सभी में सिचुएशन ऐसे ही है, तो पूरे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है बच्चों, राइट? नाउ if we consider about the whole substance, we generalize this one for the whole substance, obviously the magnetic moment of the whole substance will be zero, right? Now what will happen when we apply the external magnetic field? When we apply the external magnetic field, what happens? In each pair of electrons, one gets accelerated while another gets deaccelerated, such that the magnetic moment is developed in an atom opposite to the direction of external magnetic field. So this is about explanation about the diamagnetics, and now we will discuss about the paramagnetic. The paramagnetic. Children, in paramagnetics, each atom have generally odd number of electrons, right? And all the two electrons form the pairs, but one remains in an atom because there are odd number of electrons. Then what will happen? Each atom has its magnetic moment, and in this case, each atom is known as atomic magnet. So here is the concept of atomic magnet. Each atom becomes atomic magnet, right? Now, if we discuss about the whole substance, what happens? Each atomic magnet is randomly oriented in the whole substance, right? In such a way that अगर हम इसको बनाए बच्चों, तो ये इस तरीके से आप समझ लें कि जैसे ये हम ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं इस तरीके से, randomly oriented, ये randomly oriented है. And so the net magnetic moment of the whole substance, whole paramagnetic substance, is zero once again, right? Now when external magnetic field is applied, what happens? Each atomic magnet experiences a couple, right? And therefore gets aligned, has a tendency to align along the magnetic field. We can show it this way. अगर हमने सपोज कीजिए कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां अप्लाई कर दी, तो ये एटॉमिक मैग्नेट्स इस तरीके से
उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं कपल की वजह से। एंड मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड बट feebly in the direction of external magnetic field. This is magnetic field. तो बच्चों पैरामैग्नेटिक्स में एटॉमिक मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है, राइट? नाउ वी विल डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेरोमैग्नेटिक्स, और जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसका एक्सप्लेनेशन एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, इसके बारे में। बच्चों जैसा आपसे मैंने कहा पहले भी कि फेरोमैग्नेटिक्स और पैरामैग्नेटिक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो पैरामैग्नेटिक्स में है वो पैरामैग्नेटिक्स में ज्यादा है, ज्यादा डिग्री में। What happens in this case? Large number of atomic magnets, very large number of atomic magnets, about 10 power 22, about 10 power 22 atomic magnets gets aligned itself in particular direction, and another set of 10 power 22 atomic magnets get aligned in another direction. Another of 10 power 22, about 10 power 22 or 10 power 24 gets aligned in other direction, right? So when large number of atomic magnets gets aligned in a particular direction, right, then that region is known as domain. तो यहां बच्चों बात होगी डोमेन थ्योरी की, which is very important, very very important. Domain, large number of atomic magnets, about 10 power 22 to 10 power 24 atomic magnets gets aligned in a particular direction and form a region. That region is known as domains. Now, if we discuss about the whole substance, then each domain are oriented in such a way that the net magnetic moment of the whole substance is again zero. अब देखिए बच्चों, अगर हम इसको पूरे उसको दिखाएं तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। अगर हम दिखाएं जैसे ये देखिए बच्चों, ये इस तरीके से, these are aligned in this direction, right? और यहां पर देखिए बच्चों, ये इस डायरेक्शन में aligned है, ये इस तरीके से। ये डोमेन दिखा रहा हूं मैं अलग अलग, 4 डोमेन हम दिखा पा रहे हैं यहां पर। कितने भी डोमेन हो सकते हैं, ये इस तरीके से देख रहे हैं आप। ये इस डायरेक्शन में अलाइंड है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नेटिक मोमेंट को ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा। सो द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज अगेन जीरो। Why? Because the different domains are oriented randomly such that the net magnetic moment is again zero. Now what happens when we apply the external magnetic field? So here are the two cases. One is when the external magnetic field is weak, then by the displacement of the boundaries of the domains, the boundaries of the domains gets displaced. राइट, मैं डायग्राम से दिखाता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बच्चों। मैं यहां डायग्राम से दिखा रहा हूं, देखिए आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहा हूं इस तरीके से, यहां पर ये है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां लगी हुई एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये स्पेशली तब होता है व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, देन व्हाट हैपेंस कि जो यहां की इस तरफ इस डायरेक्शन की होगी उसकी बाउंड्री बढ़ जाएगी। यानी कि मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, देखिए ऐसे, इसकी बाउंड्री बढ़ गई, यानी कि दिस वे, ये इसकी बाउंड्री जो है इस तरीके से बढ़ गई, ये इस वाले के सामने बढ़ गई। इसका देखिए ये इतना होगा, इसका ये, और इसका जो है पोर्शन ये आप देख रहे हैं कि बहुत कम है। अब देखिए ये तो चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये इसको कैंसिल कर देगा, लगभग बराबर है, लेकिन ये इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, उसके डायरेक्शन में जो डोमेन थे उसका रीजन बढ़ गया। सो हियर द सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन्स। नाउ व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग, अगर स्ट्रांग है तब क्या होगा, तो देखिए स्ट्रांग होता है तब क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, and is it strong enough, then what will happen, domains gets oriented in the same direction, all the domains gets oriented in the same direction, boundaries का displacement नहीं होगा। ये इस तरीके से देखिए बच्चों, ये इस तरीके से, ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गए, ये देखिए ये इस डायरेक्शन में, सारे एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं। ये देखिए इस डायरेक्शन में आ गए, ये भी देखिए बच्चों, ये सब इस डायरेक्शन में आ गए हैं। ये सो
by the rotation of the diamonds, when the external magnetic field is strong, then the magnetic substance, ferromagnetic substance gets magnetized by the rotation of all the domains and gets aligned in the direction of external magnetic field. तो ये दो केसेस बच्चों हैं, केस फर्स्ट इज दिस वन, केस सेकंड इज दिस वन. When external magnetic field is weak, this is the case. When external magnetic field is strong, this is the case. This is called domain theory. So remember that the domain theory is very important phenomena. और ये डोमेन थ्योरी बहुत पूछी जाती है. तो फेरोमैग्नेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट, कि दैट एक्सप्लेन द डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक्स 3 मार्क्स में. तो आप ये जरूर तैयार कर लें. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. थैंक यू.